Vikrant Pranam Dosto. I welcome you all for the webinar, How to Make the Best Out of Your Years in a Professional Degree. We at Vikrant strive for excellence and ensure that we let no stone unturned so as to lead you towards success. Not only financial success, but social and emotional success as well. Vikrant Group of Institution, in the astute leadership of our Chairman, Shri Rakesh Singh Rathore Sir, Vice Chairman, Mrs. Meena Singh Rathore Ma'am, Group Director, Dr. Satyanarayan A, Managing Director, Mr. Nitin Singh Tomar Sir, Secretary, Mr. Vikrant Singh Rathore Sir, Treasurer Indore, Garima Singh Tomar Ma'am, Treasurer Gwalior, Gunjan Rathore Ma'am has paved the way for success for our students. Come what may, but we are there with a single motto: onward, further, higher. Strive till you achieve your goals. In pursuit of excellence, we hereby present this day an exclusive webinar of Dr. Sandeep Atre, founder of Social Agents. Okay, you might have heard of intelligence, you might have heard of socialization. बच्चों आपने सुना होगा socialization, intelligence, emotions. हम यहाँ एक नया शब्द लेकर आपके सामने आ रहे हैं, and that is socializence. Socialization, intelligence दोनों को merge करके, ये हमारे लिए भी एक नया टर्म्स है. एंड एक बात मैं अश्योर कर सकता हूं कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, द फैकल्टीज आर एज वेल वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर व्हाट डॉक्टर संदीप आत्रे हैज टू से. So friends, it's a great opportunity for us. Dr. Sandeep Atre, founder of Social Agents, a venture specializing in the development of social and emotional intelligence through workshops and online course based on research in neuroscience and psychology. फ्रेंड्स, हो सकता है ये शब्द अभी बहुत भारी लग रहे हो आपको, बट दे आर इन आवर डे टू डे लाइफ. ये हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में आते हैं. ही ऑथर 2 बुक्स, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली एंड ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल बिहेवियर. बिफोर आई गो एनी फर्दर, let me ask our Managing Director, Mr. Nitin Singh Tomar sir, to please welcome Dr. Sandeep Atre. Mr. Nitin Singh Tomar sir. Thank you, Masi sir. Is Sandeep Atre sir here? I don't see him actually. Sir, he had already confirmed. I'm here. No, he is here, but I can't see him on the I'm here, camera. I'm here. Now the video is Okay, sir. Right. So first of all, I must wish all of you a happy Dashera. आप सभी बच्चों को, सभी लोगों को very happy Dashera. And now, I mean, I must tell you about Dr. Sandeep Atre. I met him around in 2012 when I came here to Vikrant. And मैं जब तब से जानता हूँ, he has been a wonderful speaker. And I've heard him personally. बच्चों को तो बस मजे आते हैं. I think even when we said the faculties and the management, मसी सर ने अभी बोला कि सभी लोगों के लिए he is a very good speaker, and the kind of topic he relates to is majorly for the teenagers जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं and जो कॉलेज पे बच्चे हैं. I think it's gonna be really fun. And sir, I am looking forward to see you, and you although much required, especially during this pandemic. क्योंकि बच्चे, I mean, everybody has been sitting at home. You and we all the students also, they are also waiting कि कब कॉलेज चालू होगा and कब हम आएंगे. So the major सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चल रहा है आजकल कि सर कब से आना है. So and especially during this time, we need to give them a emotional and that kind of support as well. So and I think you will be the right person, Dr. Atre. So not taking much of your time, I think you can start the session now. Thank you, sir. Thank you so much, sir. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सुभाष जी. एक आपका मैं 1 मिनट और लूंगा. बिल्कुल करिए. जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना, उतना ही मुझे लगा कि ये सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए. Okay. Now, friends, I have the honor of introducing our eminent guest speaker for the webinar, How to Make the Best Out of Your Years in a Professional Degree. He is a corporate trainer with experience of over 2 decades and has conducted 150 plus EDP MDPs for 50 plus organizations and institutions of the like of CSC, Cummins, Pyramid, Rainbexy,
Lupin, Bridgestone, Eicher, Maruti, Force, Idea, Airtel. I could just go on and on. Management and motivational speaker has featured at platforms like IIMs, IITs, RRCAT, Rotary International, Lions International, National Entrepreneurship Network, States Teachers Training Program, Academic Staff College, GAVV, even in the police universities of Rajasthan and Indore and more than 100 institutions. He is the co-founder of CH EdgeMaker, a leading coaching and training organization of Central India for close to 2 decades, has trained close to 100,000 students for soft skills and entrance and recruitment preparation. Also a promoter, director of EduBirds, a venture in commerce education. So friends, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, now I'll apply break over here, and now I would call upon Dr. Sandeep Atre to please enlighten our students and our faculties as well. It is a matter of great pleasure for me to present the one and only Dr. Sandeep Atre. Over to you, sir. Subarji, thank you so much. Can I share screen now? Sure, sir. Is screen visible है Subhashi? Yes, sir. Great. Yeah, that's visible. So good afternoon everyone. तोमर सर ने जो कहा, सुभाष जी ने जो कहा, उन्होंने मेरे बारे में जितना भी कुछ बताया, दरअसल अगर मैं बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो मैं एक टीचर हूं। लोग कहते हैं अरे आपके बारे में इतना महिमा मंडन किया गया था, आप बोल रहे हो आप सिर्फ टीचर हो। ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं आपको, मैं एक्चुअली टीचर हूं। देखो बेटा, आप जितने लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल उस तरह बात करूंगा जैसे कि कोई एल्डर आपसे बात कर रहा हो, आपके फैमिली का। उसकी वजह है क्योंकि मुझे आज पब्लिक स्पीकर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और मैं दरअसल आप में से हर एक से सीधे पर्सनली बात कर रहा हूं, ऐसा आप मान पाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ लोग जो है बेटा वो अभाव से टीचर बनते हैं क्योंकि उन्हें कुछ और नहीं मिलता। कुछ लोग प्रभाव से टीचर बनते हैं और मुझे ये मुगालता है बरसों से कि मैं स्वभाव से टीचर हूं और मैं हमेशा से टीचर ही बनना चाहता था। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ये तो मिस वर्ल्ड आंसर हो गया कि मैं हमेशा टीचर ही बनना चाहता था। सच्ची में ऐसा? ऑफ कोर्स सच्ची में ऐसा, सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको। अब आप कहेंगे साबित करो, तो बेटा मैं कैसे साबित करूं, वो तो मेरा काम ही साबित कर सकता है। मुझे लगता है कि इंसान का फन जो है वो कफन तक उसका साथ देता है, उसके अलावा और कोई चीज उसका साथ नहीं देती जिंदगी में आखिरी तक। इंसान का फन ही कफन तक उसका साथ देता है। तो मेरा काम ही बताएगा कि मैं शायद स्वभाव से टीचर बनने के अपने इस दावे को पूरा कर पाया हूं या नहीं। खैर, सुभाष जी ने जितना बताया उससे लगता है कि पूरा भले ही न कर पाया हूं, लेकिन कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आज मैं जब आपसे बात करूंगा तो मुझे जो है वो प्लीज ऐसा मानिएगा जैसे मैं एक डुअल रोल में हूं। पहला, मैं आपका फैमिली का एक एल्डर हूं और दूसरा मैं एक टीचर हूं। और यकीन मानिए मैं टीचर स्वभाव से। खैर, अब वापस आते हैं। अब आज का जो सेशन है, हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर ईयर्स इन अ प्रोफेशनल डिग्री। आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो अपने प्रोफेशनल डिग्री को आज शुरू करने वाले हैं। मतलब ऑफ कोर्स आपने शुरू कर ही दिए और इस इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, इट्स अ वंडरफुल कॉलेज विक्रांत, और मेरा उससे रिश्ता बहुत अरसे से रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो सफर तैयार किया है खुद को तय करने के लिए। इस सफर के दौरान जो जो हो सकता है और जो जो होना चाहिए उसकी समझ, उसका इल्म, उसकी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से अगर आपको देने की कोशिश हो रही है, then it actually augurs well for you। ये आपके लिए अच्छा है। बाय द वे, मैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है वो ये तो नहीं कह सकता समान अधिकार से बोलता हूँ, लेकिन मैं समान प्यार से जरूर बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसका कॉम्बिनेशन ही आज आपके साथ रखूंगा, ऐसा लगे कि बातचीत हो। मैं वैसे भी अक्सर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बोलता हूँ कि टीचिंग इज नथिंग बट कन्वर्सेशन मेड अलाउड, ALOUD वाला, कि जब आप बातचीत जो है वो थोड़ा ऊंची आवाज में करने लगते हैं तो वो टीचिंग होती है। तो आज मैं उसी तरह से आपसे बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन दोनों ही मान लीजिए। वो ये है
कि आपको आज ये याद रखना है कि आपका ईमान आपके हाथ। आपका ईमान आपके हाथ का क्या मतलब? मतलब ये कि भाई मैं तो आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। और टीचर की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी नजर होती है। अगर उसकी नजर आप पर हो तो आप रोशन होते हैं, लेकिन अब मैं तो नहीं हूं वहां पर ये देखने के लिए कि आप मुझे देख रहे हैं या नहीं। तो अब आपका ईमान आपके हाथ। आज इस सेशन के दौरान आप जो हैं वो ये कोशिश कीजिएगा कि आप इस सेशन में पूरी तरह मौजूद रहें। होता क्या है, ये ऑनलाइन सेशंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप में से अधिकतर लोग साथ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप में से सोचते हैं कुछ लोग अभी जिम भी रहे हो, मुझे क्या पता चलेगा। आप में से कुछ लोग जो है वो फोन पे लगे होंगे, मुझे क्या पता चलेगा। हो सकता है किसी ने हाइलाइट्स कल के मैच की जो है वो म्यूट पे लगा रखी हो सकता है कोई पड़ोस में किसी को बिठा के बात भी कर रहा हो सकता है कोई व्हाट्सएप पे चैट शुरू कर चुका हो, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। हाँ, आप लोग अगर सारे अपने वीडियोस जो हैं वो ऑन किए भी हुए हैं तो भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट रियली लुक एट ऑल ऑफ यू। और मुझे लगता है कि एक जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट वक्त तब आता है जब आपके ऊपर नजर रखना लोग बंद कर देते हैं और बस उस दिन आप बड़े हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अधिकतर लोग उस दिन जो हैं वो बड़े होकर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि नजर रखना कम हो गया है तो वो सब करने लग जाते हैं जो वो नजर रखी जा रही है इस वजह से नहीं कर रहे होते या नहीं कर रहे पाते। बिल्कुल सही बात। लेकिन कुछ लोग जब उन पर नजर नहीं रखी जा रही होती तो वो खुद पर नजर रखना शुरू करते हैं। और बेटा बुरा मत मानना, जो इंसान खुद पर नजर रख सकता हो ना, वो दुनिया की नजर में हमेशा बड़ा इंसान बनता है। आज पहला काम जो मैं आपको दे रहा हूं वो है कि आप खुद पर नजर रखें। देखें कि आप इस सेशन में पूरी तरह मौजूद हैं या नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूं, लोग मुझसे कहते हैं संदीप सर, दुनिया में कहीं पहुंचने के लिए इंसान को कहीं पहुंचना पड़ता है। मैं कहता हूं नहीं भाई, इंसान को जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए कहीं पहुंचना नहीं पड़ता, उसको वो जहां है वहां और ज्यादा होना पड़ता है। फिर से कह रहा हूं ये बात, आप जहां हैं अगर वहां और ज्यादा हो पाए तो आप कहीं पहुंच जाते हैं। आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं और नहीं पहुंचना पड़ता, जहां आप हैं वहां और ज्यादा होना पड़ता है। बिकॉज एक्सीलेंस एंड सक्सेस दे आर साइड इफेक्ट्स ऑफ टोटली बीइंग वेयर यू आर। आप ही सोचिए, वो लोग जो पढ़ते वक्त पूरी तरह पढ़ रहे होते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो लोग जो काम करते वक्त पूरी तरह काम कर रहे होते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और वो लोग जो पढ़ते वक्त सोच रहे होते हैं कि उन्हें कुछ बनना है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं बन पाते। जो काम करते वक्त सोच रहे होते हैं कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। कितनी अजीब बात है ना। जिंदगी और नसीब हमें अपना बेस्ट तब देता है जब हम जहां होते हैं वहां पूरी तरह होते हैं। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों को ये बात मुझे लगता है अजीब नहीं लगनी चाहिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि फोकस इस वर्ड का लास्ट लेटर सक्सेस इस वर्ड का पहला लेटर है। जहां फोकस कंप्लीट होता है ना बेटा, सक्सेस वहां से शुरू होती है। और इसीलिए आज मेरी इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आप जिंदगी में जितना ज्यादा डूबेंगे उतना ज्यादा उभरेंगे। आप जितना गहरा जाएंगे उतना ऊंचा उठेंगे। वो लाइन है ना, वो बहुत अच्छी लाइन जो कबीर ने कही है, जिन खोजे तिन पाई ये गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर इसका आप ब्रंच सुनाऊं तो वो है, जिन खोजे तिन पाई ये गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो बेटा वो लोग जो सिर्फ किनारे किनारे बैठे रहते हैं और कभी भी किसी अनुभव का हिस्सा नहीं होते, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं जाते। तो मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज इस अनुभव का हिस्सा होइएगा। आज मैं अगले करीब 41 मिनट जो आपके साथ बिताऊंगा, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी में शायद पहली और आखिरी बार आ जाया हूं। अगर एक आध सेशन कभी और कभी हुआ तो शायद आऊंगा, पर उस दिन आप भी तो होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज आपके जहन में कुछ बीज विचार के डाल पाया तो ये एक संयोग ही तो है। वरना आप ही सोचिए ना, आपका और मेरा मिलना कहाँ लिखा है। तो अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी मानिए
कि आपको मेरे थ्रू जिंदगी और भाग्य कुछ विचार पहुंचाना चाहती है। मुझे एक मैसेंजर की तरह देखिए। अगर आप मुझे किसी स्पीकर की तरह देखने लग जाएंगे तो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे। मैसेंजर की तरह देखिए। आपके लिए जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आज मैं डाकिए की तरह आप तक पहुंचाने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहेंगे फिर कंफ्यूज कर दिया, अभी अभी बेटा बोल रहे थे, अब लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने लग गए। तय कर लो पहले बोलना क्या है। अरे बेटा, यही तो खास बात है, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। कभी तुमको लगेगा तुम बेटे हो अभी भी, और कभी लगेगा आप लेडीज एंड जेंटलमैन हो गए हो। और यही तो वो उम्र है जब इंसान बड़ा हो रहा होता है। अब आप कहेंगे तुम बार बार ये बात बोल रहे हो यार कि हम बड़े हो गए, तुम बार बार ये बात बोल रहे हो कि ये बड़े होने का वक्त है। ये होता क्या है बड़ा होना? क्या बड़े होना होता है किसी लड़के के लिए गालियां बकना? क्या बड़ा होना होता है जिंदगी में रोमांटिक चीजें सोचना? क्या बड़ा होना होता है कि अपने हिसाब से सुबह जब उठना हो उठना? क्या बड़ा होना होता है कि अपने खुद के पिताजी से आधा आधा घंटा बहस करना और उस आदमी को गलत साबित करने की कोशिश करना, और फिर उस बहस को जीतने के बाद एक अमेजिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करना? क्या बड़ा होना होता है दोस्तों के साथ गलवैया होकर इधर उधर टल्लाना? क्या बड़ा होना होता है वो पिक्चरें देखना जिन पिक्चरों को देखने के लिए आपको पता नहीं कितने वक्त से जो है वो महरूम रखा गया है? आपको बड़ा होना होता क्या है? आइए मैं आप डिफाइन करता हूं मेरे पहले पॉइंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। कोई बड़ा तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। कोई बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको कहा था ना आप बड़े हो रहे हैं, तो आज आपको डिफाइन भी कर दूं। बेटा, कोई बड़ा तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। कोई बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। मुझे लगता है हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग जब बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं ना तो उनको लगता है अब वो बड़े हो गए। पर तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा, अधिकतर वक्त छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े लोग छोटी छोटी बातें करते हैं। और जिंदगी में इंसान को ये बात आज तक शायद समझ नहीं आई है कि कुछ बड़ा तभी बनता है जब बहुत सारे छोटे छोटी चीजें एक दूसरे के साथ जमा होती। आज ये बात आप फिर से मेरी तरफ से गांठ बांध के रख लीजिए। कोई बड़ा तब नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। कोई बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं अक्सर जब सेशंस लेने जाता रहा हूं कॉलेजेस में इतने वक्त में, तो मुझे लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं उनको फुल टाइम जॉब चाहिए और पैकेज चाहिए 8-8 लाख का, 10-10 लाख का। और मुझे अक्सर दुख होता है कि दुनिया में ऐसे लोग फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं और 10-10 लाख का पैकेज चाहते हैं, जो एक टीवी के सामने बिना चैनल चेंज किए 7 मिनट नहीं बैठ सकते। कैन यू इमेजिन? छोटी छोटी बातें हो नहीं रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे आप खुद सोच के देखिए कि इंसान को इन सब सफलता थोड़ी मिलती है जब उसको लगता है कि वो सफलता के लायक है। उसको सफलता तब मिलती है जब किसी और को लगता है कि वो सफलता के लायक है। और किसी और को ये साबित करना कि आप सफलता के लायक हैं, वो आपके बोली से थोड़ी, आपके आचार से दिखना चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूं बेटा लोगों को, आपको अगर किसी इंसान को समझना हो ना, तो आप बिल्कुल उसके शब्दों पर जाना बंद कर दीजिए। ऑफ कोर्स मैं तो टीचर हूं तो मेरे पास तो शब्द हैं, लेकिन उसके शब्दों में जाना बंद कर दीजिए। आप उसके आचार को देखने लग जाइए, आप उसके व्यवहार को देखने लग जाइए। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जिंदगी में आप बहुत छोटी छोटी बातों को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। आप बड़ी बड़ी बातों को इंपॉर्टेंस जो है कम देंगे चलेगा, छोटी छोटी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। आप में से मालूम है अधिकतर लोगों को जब आप कॉलेज आते हो तो ये बात शायद समझ नहीं आती कि कॉलेज जो है वो स्कूल में जो कुछ सीखा है उसे अंडू करने के लिए नहीं होता। कॉलेज दरअसल स्कूल में जो कुछ सीखा है उस पर बिल्ड करने के लिए होता है। यानी छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। स्कूल में आपने क्या सीखा होगा? किसी भी अच्छे स्कूल में आपने रेगुलरिटी सीखी होगी, डिसिप्लिन सीखा होगा, आपने रोज हर चीज के लिए वक्त और हर चीज वक्त पर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने डिसिप्लिन डिफाइन कर दिया आपके लिए। रोज हर चीज के लिए वक्त और हर चीज वक्त पर, यह करना सीखा होगा।
रोज थोड़ा वक्त प्रेयर के लिए टाइम निकालना, रोज थोड़ा वक्त लाइब्रेरी, रोज थोड़ा वक्त खेलकूद, रोज वक्त पे खाना खाना, ये सब आपने सीखा होगा ना स्कूल में। शेड्यूल फॉलो करना, हफ्ते भर की क्लैरिटी रखना, जो काम दिया गया है उसे पूरा करना, सब लोगों को साथ पार्टिसिपेट करना, जब कोई जीते तो उसके लिए चीयर करना, जब आप खेलो तो पूरी तरह खेलना, टीम में रहना, ये सब आपने स्कूल में सीखा ना। लेकिन आपको पता है जब लोग कॉलेज आते हैं तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि कॉलेज दरअसल स्कूल का एक्सटेंशन है, और वो जो आपने स्कूल में सीखा है आप कॉलेज में उस पर बिल्ड करते हैं। पर अधिकतर लोग पता है क्या करते हैं, वो ना ऐसा मानते हैं कि स्कूल तो पिंजरा थी और कॉलेज खुला आकाश है, और अब वो पिंजरे में कैद से आजाद हुए सयाद ने जो बुलबुल पकड़ के रखी थी वो अब आजाद हुई, और अचानक जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी कह दिया हो किसी ने, और अब बस अब परवाज, अब परवान चढ़ाएंगे। मरे भाई ये भी तो सोच ले कि स्कूल में जो सीखा उसको अंडू करके कॉलेज में इंसान क्या डेवलप कर पाएगा, कभी आपने सोचा? इसे ऐसे समझाता हूं मैं, ये तो ऐसा हुआ कि मैं 2 मंजिल का मकान बना रहा था, और मैंने जो है वो ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद जब फर्स्ट फ्लोर बनाना शुरू की तो आप आओ और आपको नहीं यार फर्स्ट फ्लोर हम जो है वो फिर से बनाएंगे, पहले आप ग्राउंड फ्लोर हटाओ। अरे ग्राउंड फ्लोर हटा दूंगा तो फर्स्ट फ्लोर कैसे बनेगी? सोचो ना। इसीलिए तो अगर ग्राउंड फ्लोर मजबूत नहीं होगी तो फर्स्ट फ्लोर किसके बेसिस पे बनेगी? आप में से अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, आप स्कूल में जो कुछ सीखते हैं ना वो कॉलेज में आके अंडू कर देते हैं। ऐसा लगता है कंट्रोल Z दबा दिया, अचानक से आपके जिसको अपन कहते हैं ना प्रोवर्बियल तरीके से आपके पर निकल आता है, आपको लगता है बस अब जो है वो हम अपने हिसाब से जिएंगे। भाई जरा हिसाब से जी लो, अपने हिसाब के बजाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हर इंसान जो कॉलेज में आके स्कूल में जो कुछ छोटी छोटी चीजें डेवलप कराई गई थी उसको नहीं रखता अपने साथ, वो आगे नहीं पहुंच सकता। इसे ऐसे समझाता हूं बेटा, स्कूल जो है वो दरअसल आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए थी, और कॉलेज डिस्क्रिशन। आप कहेंगे फिर से समझाओ। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और डिस्क्रिशन मतलब विवेक। तो डिसिप्लिन होता है क्या करना है, व्हाट, और विवेक होता है क्या करना है नहीं, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। इसको फिर से कह रहा हूं, स्कूल सिखाती है क्या करना है, पर कॉलेज सिखाता है कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। लेकिन उसका बेस तो अभी भी क्या करना ही है ना। यानी आप जो भी कुछ डेवलप कर रहे थे स्कूल में उन्हें अपने साथ रखिएगा, वो सारी क्वालिटीज कॉलेज में लेकर आइएगा, वरना पता चला कॉलेज में आपको जो है वो नई चीजें सिखाने गए और पुरानी चीजें आप जो हैं वो भूलते गए, और आपने दरअसल जो A+B होने वाला था उसे फिर से A को दोबारा करने की जद्दोजहद बना लिया। डोंट डू दैट, ओके। तो छोटी छोटी बातों का ज्यादा ख्याल रखना, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, क्लास अटेंड करना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर लाइब्रेरी जाना, वक्त पर थोड़ा वक्त जो है वो निकालना खेलने कूदने के लिए, ये सारी चीजें आपको करना होगा, ओके। ये मेरा पहला पॉइंट। आइए अब मैं दूसरा पॉइंट दे देता हूं। मेरा दूसरा पॉइंट है आज के सेशन के लिए, समझदार व्यक्ति अक्ल से ही वह काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों को जुनून की जरूरत पड़ती। देखिए ये लाइन जो है ये मेरी है ना। मैं अक्सर कहता रहा हूं लोगों को कि समझदार व्यक्ति अगले से ही वह काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों की जरूरत पड़ती है। यानी क्या, ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग जब कॉलेज आते हैं ना बेटा, तो वो सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या कर बैठते हैं, वो आपको बताऊं। वो दरअसल कॉलेज आकर एक नए तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो नया तरीका क्या है आपको बताता हूं। वो नया तरीका ये है कि वो साल भर कुछ नहीं करते, और वो आखिरी में 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन में पूरे सिलेबस कवर करके एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकाल भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर, सैंपल पेपर्स, दुनिया भर की कुंजियां, कीज, वो सब जो है वो लगाई होती हैं, और उन्हें फाइनली पूरे 3 साल की, 4 साल की जो आपकी डिग्री होती है, वो आप कहते जरूर हैं 3YDC 4YDC, लेकिन सच कहूं ना तो दरअसल आप कोई भी साल ना पूरे साल पढ़ने के बजाय आखिरी के 30 दिन, 15 दिन की ही डिग्री कर रहे होते
एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनीबॉडी। बेटा मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत सिंसियर हैं और बहुत पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको कैसे पता चलता है बहुत पढ़ रहे हैं वो? तो कहते हैं देखो सर, पिछले ना एग्जाम आ रही है और पिछले 15 दिन से वो रोज सर 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहा है। तो मैं कहता हूँ देखिए आपका बच्चा आपको लग रहा होगा सिंसियर है, मुझे तो बेवकूफ लग रहा है। तो लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो, बेवकूफ क्यों लग रहा है आपको, स्टूडियस है वो तो, रोज 12-12 15-15 घंटे पढ़ रहा है। मैंने कहा जो शख्स पूरे साल दिन भर कुछ ना करता हो और आखिर में 15-15 20-20 दिन में घर का माहौल बिगाड़ के, कर्फ्यू लगवा के, पिताजी का बीपी बढ़ा के, माँ का माइग्रेन वापस लाके, टीवी पूरी तरह बंद करवा के, अगर लड़का हो तो दाढ़ी बढ़ा के, लड़की हो तो सारे काम छोड़ के और सिर्फ एक जगह बैठकर काम करने से अगर कुछ अचीव कर रहा है तो आपको समझदार और आपको सिंसियर लगता होगा। मेरी नजर में तो ये निरा बेवकूफ है, क्योंकि जो काम साल भर रोज पौन घंटे पढ़ के किया जा सकता था, वो साल भर कुछ ना करके और आखिर में सिर्फ 15-20 दिन में पागलों की तरह जुट के करने का मुझे तो कोई लॉजिक दिखता नहीं। पर आपको मालूम है हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं। इनफैक्ट हम में से अधिकतर लोग, बुरा मत मानना, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। वो शिकार क्या है मैं आपको बताता हूं। हम में से अधिकतर लोग अच्छा वक्त जाया करते हैं और मुश्किल वक्त का इंतजार करते हैं अच्छा बनने के लिए। इस लाइन को फिर कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। हम अच्छा वक्त जाया करते हैं और मुश्किल वक्त का इंतजार करते हैं अच्छा बनने के लिए। आपको बताऊं, हमको कहीं पहुंचना होता है ना, तो हम में से अधिकतर लोग ना घर पे मट्ठे जैसे पड़े रहते हैं, लेट उठते हैं और उसके बाद कॉलेज जब जाना शुरू करते हैं तो गाड़ी इतनी तेज चलाना शुरू करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं इनको बोलता हूं कि बेटा टाइम कवर करने के लिए दरअसल सड़कें नहीं थी, टाइम कवर करने के लिए घर थे। आप घर पर 15 मिनट जल्दी उठकर और सड़क पर आराम से चल सकते थे, बजाय कि आपने जो किया, यानी घर पर मट्ठे जैसे आधा घंटा एक्स्ट्रा पड़े रहकर और फिर तेज गाड़ी चलाकर टाइम पर पहुंचने की कवायद की कोशिश। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा होगा आपको आसपास ऐसे बेवकूफ बहुत मिलेंगे जो वक्त पर निकल सकते थे और आराम से चल सकते थे, नहीं वो लेट निकलते हैं और फिर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। बेटा ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते, ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते। कोई जिंदगी में रेवड़ियां थोड़ी बट रही हैं कि सक्सेस सबको मिलेगी। सक्सेस उसी को मिलती है जो लगातार साबित करता है कि वो सफलता के लायक है, जो स्पर्ट्स में यानी कभी कभी साबित करता है कि वो सफलता की कामयाबी के लायक है, उसे सफलता नहीं मिल सकती। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप लगातार सफलता के लायक हैं। आप कभी कभी सफलता के लायक प्रूव करके हमेशा की सफलता पा नहीं सकते, और इसीलिए आपको लगातार अच्छा काम करना पड़ता है। और हाँ, इसके लिए जुनून की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो अक्ल से ही हो जाता है। यार एक बात बताओ, मुझे अगर कहीं आगे पहुंचना है जिंदगी में तो मुझे पढ़ाई सिंसियरली करनी पड़ेगी, इसमें जुनून क्या करेगा, ये तो अक्ल करेगी। आपको मालूम है कि अगर आपको आगे पहुंचना है जिंदगी में तो आपको रोज अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, इसमें जुनून क्या करेगा, ये तो अक्ल करेगी ना। आपको एक बात बताऊं बेटा, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूं, आपको याद है ना कई लोग जो है वो पत्रिका देख के लोगों का फ्यूचर बताते हैं कि देखो पत्रिका देख के जो है फ्यूचर बताओ। मैं ना बरसों से लोगों को छेड़ने के लिए बात कहता रहा हूं कि आप मुझे पत्रिका मत दिखाओ, आप मुझे किसी का भी पिछले 2 महीने का रोज का शेड्यूल दिखा दो और मैं उसका फ्यूचर बता सकता हूं। यकीन मानो बेटा, आप रोज जिस तरीके से एक दिन बिताते हो उसमें बीज होते हैं आपके भविष्य के। इंसान जिंदगी में न जाने कितना कुछ अचीव करना और कंट्रोल करना चाहता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज सबसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, आज का दिन वो कैसे व्यतीत करेगा। और आज का दिन वो व्यतीत करेगा कि व्यय करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अधिकतर लोग जो हैं वो दुनिया भर के ख्वाब देखते हैं और आज इस दिन के सच को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जुनून जो है वो बेवकूफों के लिए बेटा। आप सिर्फ अक्ल लगाइएगा, रोज वो कीजिएगा जो आपको करना चाहिए, रोज हर दिन कॉलेज जाकर उस तरह से बिताइएगा जिसमें स्कूल में आपने जो कुछ पाया था उसके गुण मौजूद और नजर आए।
और यकीन मानिए आप अधिकतर अच्छा ही करेंगे। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था आज का। बुरा मत मानिएगा, मेरे पास जो है वो सिर्फ एक पॉइंट और है और उसके बाद एक लास्ट स्लाइड। यानी आप लोग जो हैं वो इस बात की चिंता मत कीजिए कि हम बहुत ज्यादा खींचेंगे। ओके, डोंट वरी। मेरा वैसे ही मानना है कि एक मेहमान को तब चले जाना चाहिए जब मेजबान अभी भी शायद चाहता हो कि वो रुके। ओके, तो आइए इस दूसरे पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, वो ये है, ध्यान से सुनना। किसी जमीन के टुकड़े को खेत बनाने के लिए किसान की नजर और मजदूर की मेहनत जरूरी होती है। इस लाइन को फिर से कहूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये भी मेरी अपनी लाइन है। ऑफ कोर्स पहली वाली मेरी नहीं थी। देखो, जिंदगी में कभी किसी का क्रेडिट लेना नहीं, क्योंकि उससे अपनी सोल करप्ट होती है, और अपना क्रेडिट कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे अपनी इंटेलिजेंस इंसल्ट होती है। ओके, तो किसी जमीन के टुकड़े को खेत बनाने के लिए किसान की नजर और मजदूर की मेहनत जरूरी होती है। देखो, मुझे लगता है ये लाइन भली मैंने लिखी है तो सच है, ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात मैंने इन्वेंट कर दी, कुछ भी नहीं किया, दरअसल सच यही है ना। आइए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, शायद आपको बहुत क्लियर होगा। मान लीजिए मैं एक 15 लोगों का ग्रुप लूं, ध्यान से सुनना। मान लो आप में से 15 लोगों का ग्रुप लूं और उनको एक जमीन का टुकड़ा दूं, और इन 15 लोगों ने दरअसल आज से पहले सिर्फ मैदान देखे हो, खेत कभी ना देखा हो, और वो जमीन का टुकड़ा बिना जुता हुआ खेत, और मैं उस 15 लोगों के ग्रुप को वो जमीन का टुकड़ा दूं और उनसे कहूं कि मैं 3 साल बाद या 4 साल बाद वापस आऊंगा और फिर ये जमीन का टुकड़ा आपसे वापस ले लूंगा। आप कहो ठीक है, अब मैं 3 साल 4 साल जो भी हमने स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन रखी हो उसके बाद वापस आऊं और आपसे वो जमीन का टुकड़ा ले लूं। लेकिन जब मैं आपसे जमीन का टुकड़ा लूं और उसके लिए जब आपके पास आऊं, तो यकीन मानिए आप वो 15 लोग जिनको मैंने चुना था और उस जमीन के टुकड़े को सौंपा था, वो पता है उस जमीन के टुकड़े को, चूंकि उन्होंने उसके पहले सिर्फ मैदान देखे थे, इसलिए उस जमीन के टुकड़े को भी एक सिर्फ बड़ा मैदान बना के छोड़ेंगे। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठ के जो है वो अष्टचंग पे खेल रहे होंगे, कुछ लोग वहां धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे, कुछ लोग वहां ठिठोली कर रहे होंगे, कुछ लोग वहां बैठ के अंताक्षरी खेल रहे होंगे, कुछ लोग ग्रुप में बैठ के जो है वो जीम रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो दरअसल पेड़ के नीचे बैठ के गाना बजाना कर रहे होंगे। वो उस जमीन के टुकड़े को भी मैदान ही बना लेंगे, क्योंकि उनके पास किसान की नजर नहीं। कितना बुरा लगे कि अब उन 15 लोगों के पास जाके मैं उनसे कहूं कि मैं अब इस जमीन का टुकड़ा आपसे वापस ले लूंगा, पर आपको शायद पता नहीं था ये खेत है, और वो कहें ओह आपने बताया ही नहीं कि ये खेत है, क्योंकि अगर आपने बताया होता तो शायद हम इससे बहुत कुछ उगा पाते। बेटा आप मालूम पड़ा ये सेशन आज का क्यों है? ये आज का सेशन इसलिए है ताकि आपको बता दूं कि अब जो जमीन का टुकड़ा अगले 3 से 4 साल के लिए आपके पास है वो खेत है। और खेत की खासियत बताऊं बेटा, खेत की खासियत ये होती है कि खेत में आप ही, जी हाँ, इस खेत में आप ही किसान हैं और आप ही बीज। इस लाइन को फिर से कह दूं, शायद आपको समझ आ जाए। इस खेत की खासियत यह है कि इस खेत में आप ही किसान हैं और आप ही बीज। तो आप कहेंगे फिर कॉलेज किस चीज की फीस ले रहा है भाई? अगर हम ही किसान हैं, हम ही बीज हैं, तो भाई जो किसान है वो आप हैं, बीज आप हैं। कॉलेज का काम है आपको एक जमीन, आपको खाद, आपको धूप, आपको पानी देना, आपको सुरक्षा देना उन सारे गाय ढोरों से जो आसपास से आते हैं। लेकिन यकीन मानिए किसान आप हैं, बीज आप। और बुरा मत मानना, लेकिन बीज की प्रवृत्ति जो है ना, उस पर फसल उतनी ही डिपेंड करती है जितनी सिंचाई के लिए पानी से। तो आपकी प्रवृत्ति आपके हाथ। आप आज जो भी कुछ बनाओगे ना अगले 3 से 4 साल में, वो दरअसल आपके बारे में कुछ बताएगा, ना कि विक्रांत के बारे में। देखो बेटा, मैंने एवरेज से एवरेज कॉलेज से एक्सीलेंट स्टूडेंट्स और एक्सीलेंट से एक्सीलेंट कॉलेज से एवरेज स्टूडेंट्स निकलते हुए देखे। इनफैक्ट मैं हमेशा ये बात लोगों से डिस्कस भी करता हूँ कि अगर द्रोणाचार्य में कुछ खास होता तो वो हर किसी को अर्जुन बनाता ना, लेकिन सेम द्रोणाचार्य अर्जुन भी बनाएगा, दुर्योधन भी बनाएगा और एकलव्य भी बनाएगा। क्यों? क्या वो द्रोणाचार्य की खासियत थी? नहीं, वो खासियत थी उस इंसान की जो उसके पास आया था। वो जैसा भी आता है उसका बेहतर वर्जन बन के चला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी
आने वाले 3 या 4 साल किसान की नजर और मजदूर की मेहनत के साथ अपने इस नए कर्म भूमि में प्रवेश कीजिए। अब आप कहेंगे आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दीजिए, अब जो है वो हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर ईयर्स इन अ प्रोफेशनल डिग्री के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे कि नहीं बताएंगे? चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स और मेरी आज की लास्ट स्लाइड पर। उस लास्ट स्लाइड को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, आइए देखें। इसे मैं डायमंड शेप डिग्री कहता हूं, आप काइट शेप कह सकते हैं, आपकी इच्छा। आइए इसको ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है। पहला, किसी भी डिग्री को अगर वो 3 साल की हो, 4 साल की हो, 2 साल की हो, जो भी हो, उस डिग्री को बिताने का जो बेस्ट तरीका होता है वो डायमंड शेप्ड या काइट शेप्ड होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। पहले हाफ ऑफ द डिग्री, यानी अगर 2 साल की डिग्री है तो 1 साल के लिए, 3 तो 1.5 साल के लिए, 4 तो 2 साल के लिए। पहले हाफ ऑफ द डिग्री में बेटा आप सब लोगों को अगर बेस्ट डिराइव करना है ना इस डिग्री से, तो पहले हाफ ऑफ द डिग्री में क्या कीजिए? डाइवर्जेंस कीजिए। डाइवर्जेंस कहा है मैंने, डाइवर्जन नहीं कहा है ना, भटकिएगा मत। डाइवर्जेंस मतलब पूरा खुल जाइए। जी हाँ बेटा, पहले 1.5 साल 2 साल जो भी आपकी डिग्री की हाफ ड्यूरेशन है उसमें पूरी तरह खुल जाइए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, हर एक्टिविटी में, सोशल वर्क में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, को करिकुलर में, प्रेजेंटेशंस में, स्पोर्ट्स में, वो हर एथिकल एक्टिविटी, हर एथिकल एक्सपीरियंस, ये लाइन बहुत जरूरी थी, हर एथिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा बनी। जी हाँ, हर एथिकल एक्सपीरियंस का। लेकिन यहां पर एक बड़ा कैच है, वो बताता हूं मैं आपको मालूम है आप में से अधिकतर लोग ये डाइवर्जेंस क्यों नहीं करते? मैं बताता हूं। क्योंकि जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं ना, तो आप में से अधिकतर लोग दरअसल असुरक्षा का भाव लेके पहुंचते हैं। आपको लगता है हे भगवान ये नई जगह है, पता नहीं यहां पर हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो आप क्या करते हो? आप इस दुनिया का सबसे अच्छा गेम खेलते हो। वो गेम जो आप में से अधिकतर लोगों ने स्कूलों में ऑलरेडी खेला हुआ है, वो कॉलेज में फिर खेलते हो। उस गेम का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स यानी क्या? आपको बताता हूं। आप जैसे ही पहुंचते हो ना कॉलेज, तो अपने आसपास 2-4 छर्रों को बटोर लेते हो, और अब दिन भर वो छर्रे आपको चढ़ाते रहते हैं और आप उन छर्रों को चढ़ाते रहते हो। यकीन मानो, वही 2-4 छर्रे आसपास बटोर लेते हो। अच्छा, वो छर्रे भी कैसे बटोर? अच्छा, आप कहोगे छर्रे क्यों बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स है ना? नहीं बेटा, वो फ्रेंड्स नहीं है, वो छर्रे ही हैं। तो आप कहोगे अरे छर्रे और फ्रेंड में फर्क क्या होता है? मैं बताऊंगा क्या फर्क होता है। पर आप सबसे पहले वो छर्रे बीनते हो अपने आसपास, और दिन भर वो आपको चढ़ाते रहते हैं, आप उनको चढ़ाते रहते हो। अब इन्हीं छर्रों के साथ आप लंच करते हो, इन्हीं छर्रों के साथ क्लास में बैठते हो, इन्हीं छर्रों के साथ प्रेजेंटेशन की टीम बनाते हो, इन्हीं छर्रों के साथ एक दिन सुबह उठ के मांडू घुमाते हो, इन्हीं छर्रों के साथ बर्थडे पंप से एक दूसरे को देते हो, इन्हीं छर्रों के साथ फोटो बॉम्बिंग करते हो, इन्हीं छर्रों के साथ जो है वो सारे के सारे एक्टिविटीज करते हो। अब होता क्या है, आप डाइवर्जेंस कर ही नहीं पाते, और आप कहते हो ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा पहले तो मुझे लगता है आपकी फ्रेंड्स की डेफिनेशन थोड़ी करेक्ट कर दो। अधिकतर लोग बोलते हैं सर फ्रेंड की डेफिनेशन होती है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हा, मैंने इससे घटिया डेफिनेशन आज तक नहीं सुनी। लोग कहते हैं अ रियल फ्रेंड इज समवन हु इज ऑलवेज विथ यू इन योर ट्रबल्स। सुनना है लाइन है, आप में से अधिकतर लोग कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। अ रियल फ्रेंड इज समवन हु इज ऑलवेज विथ यू इन योर ट्रबल्स। बेटा उल्टा है, अ रियल फ्रेंड इज नॉट समवन हु इज ऑलवेज विथ यू इन योर ट्रबल्स। अ रियल फ्रेंड इज समवन हु कैन डाइजेस्ट योर सक्सेस विदाउट गेटिंग जेलस। फिर से सुनना है इस लाइन को बेटा। A real friend is not someone who can be with you in your troubles. A real friend is someone who can digest your success without getting jealous. और आप में से अधिकतर लोगों को लगता है कि एक असली दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। नहीं बेटा, असली दोस्त वो नहीं होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। असली दोस्त वो होता है जो आपका बुरा वक्त आने ही न दे। सुना आपने? मुझे बड़े अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, बड़े टटपुंजी है। ऐसा बोलेंगे मेरे सामने आके, कहेंगे सर मेरे पिछले 8 साल से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत बुरा वक्त चल रहा है सर, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन 8 साल से मेरा दोस्त मेरी सहेली पूरे वक्त हर वक्त मेरे साथ है। तो मैं उसको, सहेली को, दोस्त को शक की निगाह से देखता हूँ। मैं कहता हूँ याद कर, जब से ये आया तब से तेरा बुरा वक्त तो नहीं चल रहा कहीं? ऐसा तो नहीं यही पनौती है?
लेडीज एंड जेंटलमैन, यही अक्सर होता है। हम में से अधिकतर लोग ये बात नहीं समझते कि the kind of people you meet, the kind of books you read, the kind of thoughts you listen to, and the kind of company you keep decide the kind of person you become. जी हाँ, आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, ये तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। ये मेरी अपनी लाइन है ना, खबरदार किसी ने फेसबुक पे अपने नाम से चेपी। ओके, ठीक है। आजकल बड़ी खतरनाक हालत है यार। आजकल होता क्या है, ओरिजिनलिटी की एक ही डेफिनेशन है, एबिलिटी टू हाइड द सोर्स, है ना। सोर्स को हाइड कर लो तो अपन ओरिजिनल लगने लग जाते हैं। वेल, ऐसा कभी नहीं करना बेटा। सेकंड हैंड अंडरस्टैंडिंग से फर्स्ट क्लास करियर्स नहीं बन सकते, है ना। तो वापस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यानी डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा बेटा? डाइवर्जेंस का मतलब ये होगा कि अगले 1.5 साल 2 साल जो भी आपकी डिग्री का हाफ टाइम, उसमें पूरी तरह डाइवर्जेंस कीजिए। यानी छोटे छोटे ग्रुप्स मत बनाइए। अगर आपका 60 का बैच है ना, तो पूरे 59 आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। आप तो ऑलरेडी यही ना अपने बेस्ट फ्रेंड। उसके अलावा अगर 120 का है तो पूरे 119 लोगों को आपका नाम मालूम होना चाहिए, सबके साथ हाय हेलो रखने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आपको सबके साथ दोस्त बनना है, क्योंकि वो शेर है ना, कुछ को तस्लीम तक तो रख छोड़ो, क्या जरूरी है सभी यार बने? तो जरूरी थोड़ी है कि सब लोगों का आप दोस्ती बनाओ, है ना। कुछ लोगों का हाय हेलो भी करो, लेकिन पूरे 119 लोग, अगर आप 120 हो ना, तो 119 लोग आपके दोस्त होने चाहिए, उनके साथ हाय हेलो होनी चाहिए। और एक और चीज बड़ी ध्यान से सुनो, मैं आपको, खबरदार जो किसी ने ये किया, क्या बताऊं क्या होता है। मैं ना बरसों से मैं ट्रैवल कर रहा हूं सेशंस लेने के लिए। इस देश के ऑलमोस्ट हर हिस्से में मुझे जो है वो कभी ना कभी सेशन लेने बुलाया जाता है, इवन बाहर भी, है ना। पर अब वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात बाद में करूंगा। अच्छा, एक और चीज, मैं न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी वाला इंसान हूं। मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ ना, छर्रे जैसी, आप कहोगे अरे यार तुम तो ऐसा लग रहे हो जैसे बिल्कुल हमारे जैसे हो। तो ऑफकोर्स बेटा, तुमको समझाने के लिए मुझे तुम तक थोड़ा तो आना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं ऊपर खड़ा हो जाऊं और कहूं कि तुम उचको। अरे कितना उचकोगे तुम एक हद के बाद? मैं भी थोड़ा बढ़ूं, तुम भी आगे बढ़ो, तभी तो हम कहीं बीच रास्ते मिलेंगे ना। और मैं गीता से लेके, गीता दत्त नहीं बेटा, भगवत गीता से लेके, भगवत गीता से लेके ब्रेन के नॉलेज के बारे में बात कर सकता हूं। पर जरूरी नहीं है ना, हर गर्दन सुदर्शन चक्र के लायक थोड़ी होती है। तो मैं क्यों बिना बात के वो बातें कहूँ आपसे जिनका आपसे कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आप कभी बड़े हो जाएंगे तो उस बारे में और बात होगी। खैर, अभी वापस आए। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना इतनी जगहों पर, तो मैंने आपको ना एक सीन दिखाता हूँ, ध्यान से इमेजिन करना है सीन। ये सीन ऐसा होता है, और मैंने ये सीन सारे एवरेज कॉलेजेस में देखा है। ध्यान से सुनना है सीन, हाँ बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना और फिर विजुअलाइज करना। ये सीन ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, कई बार एवरेज कॉलेज में मैं पहले पहुंच जाता हूँ, और उसके बाद जो है वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सब लोग आना शुरू होते हैं ऑडिटोरियम में, है ना। अब मैं बैठा हुआ हूँ ऑडिटोरियम में, लोग आना शुरू होते हैं। अब ध्यान से विजुअलाइज करना, मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ और लोग आते हैं, और जब आना शुरू होते हैं तो देखो बड़ा मजा आएगा। एक वो एंट्रेंस से लोग अंदर आना शुरू होते हैं और रोज में अपनी अपनी जगह लेना शुरू करते हैं, है ना। तो एक लड़का या लड़की, कोई भी इमेजिन करो, वो आकर एक रो में बैठता है ऑडिटोरियम की, और उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता हूं कि वो जो लड़का या लड़की रहता है ना, वो बच्चा, वो उस रो में सीट, वो जो सीट है, वो जो चेयर है ना, वहां पे आके बैठने के बाद वो बहुत ही बेचैनी से फिर एंट्रेंस की तरफ देखने लग जाता है ना, जहां से और लोग आ रहे हैं। बहुत बेचैनी से एंट्रेंस की तरफ देखना शुरू करता है, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ऐसा करना शुरू करता है, हाथ हिला के, इधर 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 इधर, यहां यहां यहां, ए रमेश, ए महेश, ए दिनेश, महेश, पुष्पक, सब इधर। दुनिया भर की बात जो भी रहती है ना उसकी, वो सब के सब ऐसे बुलाता है। और फिर वो वहां से जो लोग एंटर कर रहे होते हैं ना बेटा, वहां से वो लोग भी हाथ हिलाते हैं, और फिर वो सब के सब इधर उसकी रो में उसके आसपास आने के लिए वहां से मचलते हुए आ रहे होते हैं। इतनी देर में वो जहां बैठा होता है उसके पास में अगर कोई और आके बैठने लग जाता है ना, तो वहां पे बॉटल रख देता है, नहीं यहाँ कोई आने वाला है। फिर इधर राइट साइड में कोई आना शुरू करता है तो वहां पे बस्ता रख देता है, नहीं यहाँ पे कोई आने वाला है। हे भगवान, कैन यू इमेजिन फिर क्या होता है? मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो पूरे 5-6 जो छर्रे होते हैं उसके, वो आते हैं और आकर उस रो में सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बाराती हो, है ना। और फिर बैठने के बाद उनके चेहरों पे आप सुकून देखिएगा बेटा, ऐसा सुकून मिलता है कि उनको दुनिया मिल गई, अब उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव यू एवर वंडर्ड, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती है? ये तो वो खेल हैं जो लोग 6वीं और 7वीं में खेलते हैं बेटा। स्कूल में ये जिद फिर भी समझ में आती है कि मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठे,
कॉलेज में सर वॉइस इज ब्रेकिंग, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है संदीप सर, एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा प्लीज। वीडियो तो दिख रहा है आपका हमें, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। शायद कुछ इंटरनेट इशू है, मेरे ख्याल से संदीप सर वापस जो है हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्दी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों ने रियलाइज करा होगा जो भी बातें संदीप सर कर रहे हैं, मैं तो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाया हूँ इतनी देर से। इवन जितनी मतलब रियलिस्टिक चीजें शेयर करी है संदीप सर ने हमारे साथ अभी तक, वो ऐसा लग रहा है कि आपके हमारे सबके डे टू डे लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कॉलेज आज ही आए हुए हैं, और वो भी एक एक चीज आप लोगों को फील करके बोल रहे हैं। और एक बात संदीप सर ने बहुत अच्छी बोली बेटा, जो आप लोगों ने भी सुनी और समझी होगी, वो न्यूरो साइंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला वो भगवत गीता के बारे में भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज आपके और हमारे लेवल पे आके बात कर रहे हैं। He is one speaker which has performed throughout the world. वो उन्होंने हमें जो है बात बीच में छोड़ दी, लेकिन उनकी विशेषता ये रही है संदीप सर की कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, और अगर आप इंदौर या आसपास को बिलोंग करते हो तो CH एज मेकर का नाम आपने सबने सुना होगा। और CH एज मेकर के अलावा इंदौर में अगर आप संदीप आत्रे से, डॉक्टर संदीप आत्रे नाम लेते हैं, और सिर्फ यही नहीं, ही हैज डन रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। और जो सोशियोलेजेंस बनाया है उन्होंने, लाइक सोशल एंड इंटेलिजेंस को कोरिलेट करा है, दैट इज समथिंग विच वी कैन ऑल लुक टूवर्ड्स। आज उन्होंने जितनी बातें भी करी, इनफैक्ट मतलब वी वांट हिम मोर। हमारी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की इच्छा है, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा फैकल्टीज की इच्छा है कि संदीप सर एक स्टैंड अलोन सेशन फैकल्टीज का भी लें। ये तो आपसे बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, बट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि संदीप सर हमारे साथ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो साइंस डेवलप करी उन्होंने, जो इमोशनल साइंस, अब आप देखिए ये दो चीज अलग अलग हो जाती है। एक पार्ट होता है इमोशंस, एक पार्ट होती है साइंस। हम जानते हैं साइंस और इमोशंस का आपस में कोई तालमेल नहीं होता है, बट दिस इज व्हाट ही इज एक्सपर्ट इनटू, जहां पे वो साइंस को और इमोशंस को जोड़ देते हैं। बच्चों, आप लोगों ने सभी ने IQ सुना होगा, सबका IQ टेस्ट होता है स्कूल में, आप लोगों का भी हुआ होगा, और IQ में से 10 में से नंबर मिलते थे हमें। अब किसी को 10 में से 10 मिले तो वो क्लास का नंबर 1 कहलाता था। उसी तरह किसी को IQ अगर टेस्ट में 10 में से 1 मिले तो वो लास्ट कहलाता था। मेरे ख्याल से संदीप सर आ गए हैं, वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं IQ वाली बात खत्म करूंगा फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। Thank you, Subhash ji. Something went wrong and I got disconnected. Never mind. तो आइए वापस चलें। तो हम कहाँ पर थे? हम उसी ऑडिटोरियम में थे, याद है? अब उस ऑडिटोरियम में होता क्या है बेटा, कि वो जितने भी लोग वहां मौजूद होते हैं ना, वो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके दोस्त जो है वहां से आएंगे, और जब वो दोस्त आते हैं तो आकर सब के सब जो है वो साथ में बैठ जाते हैं। पर ये बात नहीं समझते कि दरअसल ये वक्त तो डाइवर्जेंस का है ना, ये वक्त तो दरअसल नए लोगों से मिलने का है, ये वक्त तो नए लोगों तक पहुंचने का है। इट इज अ टाइम टू एक्सपैंड योर नेटवर्क। वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। फाइनली इंसान को अपने आसपास वही 2-4 लोगों को इकट्ठा करके और अपने दायरे को छोटा करके सुख पाने की कोशिश कभी तो बंद करनी पड़ेगी ना। आप प्रॉब्लम यह है कि हम में से अधिकतर लोग दरअसल सफलता नहीं, सुख पाना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि सफलता से सुख आएगा, लेकिन वो पाना पहले सुख चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बुरा मत मानिए, सुख का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप अपना दायरा छोटा कर दें। कितनी सिंपल सी बात है। इमेजिन कीजिए, यहां पर अभी मेरे सामने कौन सा लड़का दिख रहा है? संजू दिख रहा है, संजू कुशवाहा, है ना। अब संजू कुशवाहा इमेजिन करे घर जाए और घर जाके कहे अपनी मम्मी से कि मम्मी मम्मी मैं दौड़ में सेकंड आया,
और मम्मी कहे अरे वाह क्या बात है संजू, कितने लोग दौड़े थे, और संजू बोले सिर्फ 2, तो बेटा अगर 2 लोग दौड़ेंगे तो तुम नहीं भी हिलोगे तो भी सेकंड ही आओगे। तो मेरा ये मानना है कि इंसान अगर अपना दायरा छोटा कर देगा तो सुख तो वैसे ही आसानी से आ जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना दायरा छोटा मत कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए। ये दायरा बढ़ाने का वक्त है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप में से अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं? आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि सर हमको डांस कंपटीशन में इसलिए हिस्सा नहीं लेना क्योंकि हमको डांस नहीं आता। मैं कहता हूँ अरे अजीब बात है, तुम्हें डांस नहीं आता तो देखने वाला आंख बंद करेगा, तुम क्यों डांस बंद कर रहे हो? अरे एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी जिंदगी में तो पहले 1.5 साल 2 साल एक ही बार आएंगे ना। सो व्हाट शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब? योर जॉब इज टू गेट एज मच एक्सपोजर एज पॉसिबल। यानी आपको अगर डांस नहीं आता है तो डांस में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो पब्लिक स्पीकिंग करिए, आप वो सब कीजिए जिससे कि आप खुलें। पहले 1.5-2 साल बेटा आप पूरी तरह से डाइवर्ज कीजिए। दिस शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। लेकिन हाँ, आप कुछ और क्या, एग्जैक्टली आधी स्टेज पर, यानी अगर 3 साल की डिग्री है तो 1.5 साल बाद, और अगर 4 साल की डिग्री है तो 2 साल बाद क्या करना शुरू कीजिए, धीमे धीमे सेकेंड हाफ ऑफ द डिग्री में कॉन्वर्ज करना शुरू कीजिए। कॉन्वर्ज करना शुरू कीजिए बेटा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब धीरे धीरे एक्सपोजर कम कीजिए। तो लोग कहेंगे भाई कॉन्वर्ज करना हम नहीं करें, अगर कॉन्वर्ज करें तो कॉन्वर्ज किसकी तरफ करें ये भी तो देखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कोई टर्म होगी ना तो वो होगी ये, भाई कॉन्वर्ज करने के लिए यानी वापस अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपके पास सामने कोई ध्येय भी तो होना चाहिए ना। अगर सामने कोई गोल है ही नहीं तो आप कॉन्वर्ज किसकी तरफ करेंगे? आप पहले 1.5 साल पूरी तरह से ओपन हो गए, लेकिन फिर बाद के 1.5 साल आपको क्लोज भी तो होना पड़ेगा, पर क्लोज होने के लिए कोई ध्येय भी तो होना चाहिए। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इस कॉलेज में ग्रेजुएशन करने या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आगे जो भी करने वाले हैं, मान लीजिए आपको किसी और अच्छी जगह से, ये भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको मान लीजिए IIM से जो है वो कोई डिग्री करनी है, मान लीजिए आपको बाहर जाना है, मान लीजिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, मान लीजिए आपको बिजनेसमैन बनना है, मान लीजिए आपको होम मेकर बनना है, मान लीजिए आपको अपने घर का बिजनेस आगे बढ़ाना है, आपको जो भी करना होगा बेटा, उसकी तैयारी के लिए किसी कंपनी में अगर आपको सिलेक्ट होना होगा, कैंपस में प्लेस होना होगा, उसकी तैयारी के लिए कम से कम 1.5 साल तो लगेंगे ना। आपको क्या लगता है कम से कम 1.5 से 2 साल किसी भी अच्छे कॉलेज या कंपनी या किसी भी अच्छे वेंचर के लिए आपको कहीं ना कहीं से ये 1.5 से 2 साल की प्रिपरेशन तो लगेगी ही ना। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप फिर धीरे धीरे कन्वर्ज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीजों में पार्टिसिपेट करना छोड़ दीजिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने उस ध्येय की तरफ फोकस करना बढ़ा दीजिए, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप कहेंगे ये क्यों जरूरी है? आइए मैं ये बता दूं ये क्यों जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे ऐसे समझाता हूं इस सेशन के आखिरी 5 मिनट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी समझदार व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ता है ना तो अपने आसपास बैठे लोगों के साथ रिश्ते बनाता है, उनके साथ बातचीत करना शुरू करता है। आपने देखा होगा, अरे वाह आप भी शेखावट से हैं, अरे वाह हम भी वहीं से हैं, अरे पता है हमारे जमाई जी जो है उस साइड से हैं, ओ हो अच्छा वहां रहते हो, अच्छा आप वहां रहते हो, उनके पास भी तो हमारे वो रहते थे, उनको हम लोग इस तरह से बात करना शुरू करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ता है बेटा तो अपने आसपास बैठे लोगों के साथ रिश्ते बनाता है, बातचीत करना शुरू करता है। फिर जब टिफिन खुलते हैं तो हमारी अचार की चीर वहां पहुंच जाती है, वहां की एक पूरी इधर आ जाती है, हमारा पढ़ा हुआ पेपर वहां जाने लग जाता है, उसकी पढ़ी हुई मैगजीन हमारे पास आ जाती है। थोड़ा और वक्त होता है और थोड़ा और अच्छी कुर्बत हो जाती है तो क्या होना शुरू हो जाता है, ताश की एक बाजी हो जाती है, शायद अंताक्षरी खेलने लग जाते हैं, हो सकता है लोग डमशराट्स खेलने लग जाएं। इतनी देर में चाय वाला आता है तो उसको चाय भी पिला देते हैं, पैसे भी लेते हैं। नहीं शर्मा जी, नहीं 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 शर्मा जी, बिल्कुल नहीं दोगे आप शर्मा जी, नहीं 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 शर्मा जी, आप पराया कर रहे हो आप। वो बेचारा चाय वाला भी कलप रहा होता है, अरे कोई भी दो यार, जल्दी दो, मेरी चाय ठंडी हो रही है। फाइनली ये सब जो है वो चल रहा होता है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति बेटा जब ट्रेन में चढ़ता है तो अपने आसपास बैठे लोगों के साथ रिश्ते बनाता है। जी हाँ बेटा, कोई भी समझदार व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ता है तो अपने आसपास बैठे लोगों के साथ रिश्ते बनाता है। और कोई भी समझदार व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ता है तो वो याद रखता है कि वो ट्रेन में रिश्ते बनाने नहीं, कहीं पहुंचने चढ़ा था। और वो ये भी याद रखता है बेटा कि जब तक ट्रेन चल रही है तब सब साथ हैं। जी हाँ, जब तक ट्रेन चल रही है तब तक सब साथ हैं, और जब ट्रेन रुकेगी
तो सब लोग अलग अलग अकेले अकेले अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं तो पीछे मुड़ के देखिए, पूरे 12 साल चल के एक ट्रेन रुकी थी, अभी अभी रुकी है। पूरे 12 साल चल के एक ट्रेन रुकी है। आज खुद को देखिए, वो सारे लोग जो उस ट्रेन में आपके साथ थे, उसमें से 95% लोग आज आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। बेटा ये ट्रेन भी रुकेगी। और एक और चीज, कोई भी समझदार व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ता है तो वो ट्रेन से उतरने के बाद नहीं सोचता उसको कहां जाना है, उसे कहां जाना है ये सोच के ट्रेन में चढ़ता है। बेटा फिर से याद दिला दूं, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा। तो बेटा तुम्हें जो भी बनना होगा इसके बाद, तुम्हें जो भी करना होगा इसके बाद, उसकी तैयारी तो लगेगी ना। पर तैयारी का रूट वर्ड क्या है? तय। जब तय ही ना हो तो तैयारी कैसे होगी? तो बेटा ये याद रखना, चाहे वो कुछ भी हो जो आपको इसके बाद अचीव करना है, लेकिन यू गॉट टू क्रिएट कन्वर्जेंस। धीरे धीरे कन्वर्ज करना पड़ेगा ताकि आप जो हैं वो पहुंच सकें धीरे धीरे कन्वर्ज करते हुए उस ध्येय की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पूरे सेशन में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। मैंने कहा ना मैं टीचर हूं, पब्लिक स्पीकर होता तो रिवाइज थोड़ी करता। हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर ईयर्स इन अ प्रोफेशनल डिग्री। मेरा पहला पॉइंट था, आप याद कीजिए, कोई बड़ा तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, कोई बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाता है। दूसरी बात आपको शायद याद हो, समझदार व्यक्ति अक्ल से ही वो काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों को जुनून की जरूरत पड़ती है। बेटा पैशन इज एन ओवररेटेड क्वालिटी। पैशन वही करता रहता है जिसमें अकल कम हो, ठीक है ना। जिसमें इंटेलिजेंस हो उसको पैशन की क्या जरूरत है। और हाँ, तीसरे पॉइंट, किसी जमीन के टुकड़े को खेत बनाने के लिए किसान की नजर और मजदूर की मेहनत दोनों जरूरी होती है, और नजर किसान होनी चाहिए। अब तुम्हें तय करना है, चाहे तुम बीबीए चल रहे हो, चाहे बीसीए, चाहे बीटेक, चाहे बी, चाहे कोई और डिग्री, फाइनली तुमको नजर डेवलप करनी पड़ेगी। और हाँ, भूलना मत, कॉलेज में तुम ही किसान हो और तुम ही बीज। एंड देन आई डिस्कस द डायमंड शेप डिग्री। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिग्री गेट एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट, और फिर सेकेंड हाफ में जो है वो कॉन्वर्ज करना शुरू कीजिए धीरे धीरे। लेकिन कॉन्वर्ज किस तरफ कीजिए? उस तरफ जो आपने तय किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा सच में मानना है कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जो आज हमने डिस्कस किए हैं अगर ख्याल रखोगे तो आप जिंदगी में आगे जाओगे। हाँ, कितना आगे जाओगे वो तो आप पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आप भूलना मत, आप ही किसान हो और आप ही बीज। ओके, सो थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। लेकिन यकीन मानिए, आप जब भी मुझसे सवाल पूछेंगे मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 48 घंटे में दूंगा कम से कम। मैं कोई फोकट आदमी नहीं हूँ, है ना। आप मुझे सवाल पूछोगे तो मैं 48 घंटे के अंदर जवाब दूंगा, लेकिन उस टाइम जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि बेटा मुझे मुगालता नहीं है कि आप मुझे इसलिए सुन रहे थे क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ। बेटा आप मुझे इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ, आप मुझे इसलिए सुन रहे थे क्योंकि अक्सर मेरा फेस एक बुक के सामने होता है। बेटा मैं अपने काम का हूं इसलिए आपके काम का हूं। अगर मैं अपने ही काम का नहीं हुआ तो आपके किस काम का। सुना, याद है मैंने शुरुआत में कहा था, सिर्फ आपका फन तक आपका साथ देता है, और उस फन के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए वेलकम टू योर ग्रेजुएशन। यहाँ वो रिश्ता शुरू होगा और मुझे यकीन है एक दिन वो रिश्ता फलित होगा आपके करियर में। थैंक यू सो मच विक्रांत टीम, तोमर सर आपका स्नेह हमेशा है। सुभाष जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड वर्ड्स दैट यू सेड अबाउट मी, एंड नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। वेलकम सर। शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें आपने अच्छी बोली। एक आपने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वाली बात वाज वंडरफुल,
और आपने ट्रेन वाली बात भी बहुत सही बोली कि ये एक ट्रेन अभी रुकी है, अब एक ट्रेन यहाँ से शुरू होगी जो दोबारा रुकेगी. So students, I think it's very important, and बहुत बहुत शुक्रिया Dr. Sandeep for the great insight that you have given us in respect of socioligence, emotional logic, and a professional insight on several issues that not only the student but we, the faculties, enjoyed as much, and we were also confused about so many things. Dr. Satyanarayan sir, to please propose a vote of thanks. Dr. Satyanarayan sir. Thank you, Subhash. Vikram Pranam to all of you. Vikram Pranam, Sandeep ji, Dr. Sandeep ji. It was very wonderful listening to you. I got really enjoyed every moment and every topic you took. You put the complexity in such simple terms. आपने जो बच्चों का दिल जीत लिया आपने. That's what I can tell you. And you said a very important point is you are the farmer, you are the seed. Okay. So हर एक बच्चों, see when you come to the campus, they are everything. It doesn't matter how you, it is best how you utilize your time, how you utilize your energy, how you utilize your talent and competence to achieve whatever you want. So that's one of the wonderful thing Dr. Sandeep ji told us. And the next thing, very important thing he told us about the divergence. So let's be open to include many more friends, okay, so that they become part of our life. And same time, when we want to reach our goal, we have to converge. So those goals, and to achieve the goal, we need to put ourselves focused and to achieve it. So it was a wonderful having you with us, sir. On behalf of Vikrant Gopal Institution, I really thank you for being with us and enlightening our students. And I look forward for many more sessions from you, and look forward to see you in the campus. That will be wonderful. Thank you so much. Thank you, sir. Once again, I would like to thank Dr. Sandeep Atre for spending wonderful moments with us and guiding our students and faculties into this exclusive journey. बहुत शॉर्ट में सर आपने बात करी, पर बहुत पते की बात करी कई जगह पे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. और जो है देखिए, हमने जो मैंने भी सुना था आपके बारे में, पर वो यहाँ पे सबने एंजॉय करा आपका इंदौरी भाषा का प्रयोग. I think that was very effective for all of us. Thank you so much. Again, Vikrant Pranam. Can I proceed now? Yes, sir. Yeah, please. Students, आप लोगों के लिए एक फॉर्म मैंने डाला है, एक फॉर्म ग्रुप में डाला है, चैट ग्रुप में. आप लोग ये फॉर्म मुझे जो है भर के वापस पोस्ट करें जल्दी, बिकॉज ये आधार बनता है सर्टिफिकेशन का, या अटेंडेंस का आधार बनता है. एग्जैक्टली अटेंडेंस तो नहीं, पर आप लोगों का जो हम सर्टिफिकेशन देते हैं इंडक्शन के लिए, ये उसका आधार रहता है. तो मैंने फॉर्म का लिंक पोस्ट किया है, आप लोग सभी को दिख भी रहा होगा चैट बॉक्स में. तो फॉर्म भर के कृपा कर हमें इसको वापस से वो करिएगा. मैं जो है 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोग फॉर्म भर के इसको जल्दी से वापस से करिएगा पोस्ट. स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कल जस्ट इंश्योर कि अटेंडेंस आप लोगों की 100% रहे, बिकॉज कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. एंड प्लस हम बहुत सारी जानकारी, अगर हमें रियल टाइम सेशन शुरू करना, आप लोगों का लाइक सवाल, सब जितने बच्चे मेरे पास भी यहाँ कॉलेज में आ रहे हैं, सबका यही सवाल हो रहा है, कॉलेज कब से शुरू हो रहे हैं. तो इस तरह के कई सवालों का जवाब हम कल देंगे. तो प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इंश्योर करें कि कल सभी लोग 1:30 का सेशन जो है उसमें मौजूद रहें. ये फॉर्म जो मैंने अभी डाला है चैट बॉक्स में, इस फॉर्म को प्लीज भर के पोस्ट कर दीजिए. अब इतने दिनों से आप कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग यूज्ड टू हो गए होंगे. इस बीच में इतनी देर समय का सदुपयोग करते हुए मैं एक शॉर्ट रिवीजन जो आज हमारे टीचर ने बात की, देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने ये नहीं बोला कि वो कोई स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है, लाइक मैं उनके बारे में बोल रहा था, ही इज अ टीचर. और इंदौर में CH एज मेकर जो भी जानता होगा, दे नो कि ही इज वन ऑफ द वंडरफुल टीचर.
और आपके और हमारे लेवल पे आके उन्होंने बात करी। देखिए, खुद पर नजर रखना, बच्चों फॉर्म भरते चलना, हाँ, खुद पर नजर रखना जो सर ने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मैं पहले दिन कॉलेज में गया था तो मुझे बहुत मजा आया था कि एक पीरियड अटेंड करा और कॉलेज से उठ के फिर चाय पीने चले गए थे कैंटीन में। ये कभी स्कूल में तो कर नहीं पाए थे हम। स्कूल में इतने